welcome. Is India on the cusp of an electric vehicle revolution? Are EVs going to replace fossil fuel powered vehicles, and to what extent? And how soon is this transformation likely to happen? Will it happen at all? Or are EVs just the newest fad in town, which are all about hype and hoopla but don't really amount to very much on the ground? What are the bottlenecks to the adoption of EVs, and how effective are the government's plans to try and speed up the process of transformation from ICE to electric mobility? To talk about the EV revolution in our country, I'd like to invite to the India Today conclave Union Minister for Transport and Highways, one of the most dynamic performers of the Modi Sarkar. Can we have a warm round of applause as we welcome the former BJP President Nitin Gadkari. Gadkari ji, welcome. We know it's a very special period for you and that you've stayed back, especially in Delhi. Ordinarily you'd be in Nagpur at this time, so we're delighted that you stayed back for the conclave. Thank you, sir. So with us to give us a sense of the challenges and opportunities in the electric vehicle space are two of the pathfinders of the industry. Jitendra Sharma is the Managing Director and Founder of Okinawa. Ketan Mehta is the Founder and CEO of Hop Electric Mobility. So welcome to this session on Mission Electric, how India is moving to a green economy. Gadkari ji, can I begin by asking you to talk about your vision for electric mobility in India, and how soon you see India moving from being a country powered largely by vehicles which run on fossil fuels to a country which predominantly runs on electric mobility, and do you see it happen at all? Actually, the most important problem which our country is facing, that is the problem related with the pollution and the economy. Our import bill is presently up to 8 lakh crores. And within 5 years, it will go up to 25 lakh crores. And by using of this petrol and diesel, we are going to generate air pollution in the country. And today we need to save this country from air pollution, water pollution and sound pollution. So import substitute, cost-effective, pollution-free and indigenous. The solution is the most important sector which is important for the country is automobile sector, and which is creating maximum pollution because of using of petrol and diesel. Presently, the turnover of this sector is 7.5 lakh crore, and the export is 3.5 lakh crores. Overall GDP contribution is 7.1%, and manufacturing GDP is 49%. The most important thing that this is the number one sector in the country, creating job for 50 million people. And this is the number one automobile manufacturing sector which is supporting our economy. And now, my dream is to make Indian automobile sector as the world leader, the number one in the world. The all reputed brand in the world, all are present in India. And by using alternative fuel and electric and other technology, I am confident that we are going to be number one within 5 years, number one in the world. One of the important interesting thing about electric vehicle is electric car sales increased by 140% globally compared to previous year. This is the fact. Government across world spent $14 billion to support e-car sales. So how you can imagine how potential is that? $125 billion spent on purchase of EV across the world. The globally public charging station reached to 1.3 million units, and world is exploring charging option for heavy-duty electric trucks, development of mega chargers of 1 megawatt of power capacity. So this is the scenario. So here is the potential for India, that the intelligent engineering capability, the young talented manpower, availability of raw material, reducing the production cost, not compromising with the quality. Sky is the limit that we can be a world leader in the sector. As far as the EV ecosystem in India, the 8
the Paris Climate Agreement to reduce 30 to 35 emission by 2030. It is already on record. So 30% our target is up to 2030. 30% private car will be electric. Then 70% commercial vehicle will be electric. 40% buses will be electric. And 80% 2 and 3 wheelers by 2030 will be electric. Every time you are asking me the question that how it is going to happen. It is neither you need any propaganda for that. Now the going by petrol car, the cost is 10 rupees per kilometer. Going by diesel is supposed to be 8 rupees per liter. And going by electric is 1 rupees per liter. सर तो कहीं ऐसा तो नहीं रुपीज पर किलोमीटर। सरकार की एक बहुत बड़ी साजिश है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने दो, क्योंकि जितना पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे उतना केतन और जितेंद्र और बाकियों को फायदा होगा कि लोग भागेंगे इलेक्ट्रिक की तरफ। तो सरकार नहीं, चलो बढ़ने दो। मैं और दूसरी बात बता रहा हूँ, मैं मेरे डिपार्टमेंट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट कर रहा हूँ। एफिडेविट इसलिए करना पड़ रहा है कि हमने यूरो 6 इमिशन नॉर्म स्वीकार किए हैं और आप मेरी बात को शांति से सुनो और आप इसको जरूर अमल में लाओ, आपके फायदे की। अब पेट्रोल का भाव 110 रुपए 115 रुपए किलोमीटर हुआ है। अब मर्सिडीज, BMW, टोयोटो, होंडा जितने को है, ये सब गाड़ियां ब्राजील में फ्लेक्स इंजन पे चलती है। फ्लेक्स इंजन से कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं उसको मैंडेटरी कर रहा हूँ, स्कूटर को, ऑटो रिक्शा को भी। तो इसका मतलब ऑप्शन आपके साथ होगा कि 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल। इथेनॉल का भाव 65 रुपए लीटर होगा और पेट्रोल का 110 रुपए लीटर होगा। इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू थोड़ी कम है, तो 1 लीटर 800 ml ऑफ पेट्रोल इक्वल टू 1 लीटर ऑफ इथेनॉल, तो भी आपकी 20 से 25 रुपए लीटर बचत होगी। और इसलिए आने वाले समय में इथेनॉल के पंप देश में शुरू हुए। प्रधानमंत्री जी ने पूना में 3 इथेनॉल पंप का इनॉग्रेशन कर दिया। अब पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने सभी ऑयल पेट्रोल पंप के लिए इथेनॉल के जो आउटलेट्स हैं वो ओपन करने की अनुमति दे दी है। हमारे देश के किसान इथेनॉल तैयार कर रहे हैं। पहले शक्कर से, मोलाइसिस से होता था, अब मक्के से, चावल से, सबसे बनेगा। और अब इंडिजिनस फ्यूल जो ग्रीन फ्यूल है, पोल्यूशन एकदम नहीं के बराबर है, उससे आपकी बचत भी होगी और पोल्यूशन भी कम होगा। पर एक बड़ा चैलेंज गडकरी जी है कि आखिरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल भी चार्ज होनी पड़ती है और जब चार्ज होती है तो कई बार चार्जिंग स्टेशन रन करता है फॉसिल फ्यूल्स पे या फिर रन करता है सोलर इलेक्ट्रिसिटी पे, और सोलर इलेक्ट्रिसिटी के लिए चाहिए होती है लिथियम का कब्जा पूरा चाइनीज के हाथों में है। तो ऐसा तो नहीं कि हम जो पूरी कोशिश कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ने की, उसके साथ नई चैलेंजेस आते हैं। जब तक वो फॉसिल फ्यूल से ही चलेगा तो कैसे हम लोग बढ़ पाए? क्या होता है, ये लोग कुछ बार पब्लिक में परसेप्शन बैठ जाते हैं, उसको सुधारने के लिए टाइम लगता है। पहली बात ऐसी है कि लिथियम आयन बैटरी 81% इंडिया में बनती है। अब इसका पहले जो रेट था उससे 35 से 40%, 50% रेट कम हो गया है। दूसरा, हमने जो कार स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई है उसमें से जो अभी सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज वर्ल्ड में है, जो लिथियम और एल्यूमिनियम, और इसके साथ साथ इसमें जो स्क्रैपिंग होगा इससे लिथियम भी मिलेगा और एल्यूमिनियम भी मिलेगा। तो ये जो स्क्रैपिंग पॉलिसी इतनी अच्छी कि हमारे देश में इतने व्हीकल भंगार में है, और अब वर्ल्ड का हमने पोर्ट का जो ड्राफ्ट है वो 18 मीटर कर दिया है। दुनिया का भंगार हमारे देश में हम लाएंगे और पूरा उससे कॉपर एल्यूमिनियम इंपोर्ट करने के बजाय वो पूरा हम लोग स्क्रैपिंग से निकालेंगे तो कॉस्ट भी कम होगी। और मैं आपको बता देता हूँ, ये पूरा एक पब्लिक में चर्चा होती कि पूरे चाइनीज ने लिथियम आयन की सब माइंस ले ली है, अब लिथियम आयन वर्ल्ड में कहीं है नहीं है, उसका शॉर्टेज है। तो पहली बात, लिथियम आयन का कोई शॉर्टेज नहीं है, उसकी कॉस्ट कम हो रही है। दूसरी बात, बैटरी केमिस्ट्री में लिथियम आयन के साथ एयर आयन और मेटल आयन दो टेक्नोलॉजी है। उसमें लिथियम आयन, सोडियम आयन, जिंक आयन और स्टील आयन, एल्यूमिनियम आयन, इस पर रिसर्च चल रहा है, इसरो में चल रहा है, IITs कर रही है, DRDO कर रही है, और हमको मिला भी है, उसमें ब्रेकथ्रू भी मिला है। आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक बैटरी में हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे और निश्चित रूप से हम उसको एक्सपोर्ट करने वाले बनेंगे, इतना पोटेंशियल है। और हमारे लोग अर्जेंटीना में, वहाँ भी दुनिया में लिथियम माइंस को भी ले रहे हैं, और मुझे नहीं लगता लिथियम आयन के प्रॉब्लम, पर जब तक लिथियम आयन चलेगा उसके बाद एक केमिस्ट्री बदलेगी और हमारा एल्यूमिनियम, जिंक, सोडियम आयन भी आएगा और ग्रीन हाइड्रोजन भी तुरंत आ जाएगा।
Chetan, give us a sense of the outlook. Electric vehicles have been in the news. We're seeing big booking numbers. We're seeing long queues and waiting lists. So, how do you see the industry evolved? Are you getting a sense that it's a very crucial inflection point where the EV industry finds itself in right now? No, I think this particular year has been transforming for this industry. I can tell you from ground reality that the target which sir has set, I think 2030 onwards, every single vehicle which will be sold will be electric, 110% sure. The kind of people's interest which we are seeing from tier 1 to tier 4 towns, right from Hyderabad to Lalsot, it's amazing. People are just flocking and buying a technology which is, some might say it's not proven in India, but people are adopting it very widely, especially I'm talking about two-wheelers because that I have a first-hand experience. Our stocks get finished overnight. It's crazy. 105 rupees petrol has helped. FAME policy, scrappage policy, all of this is helping us, in driving that future. And it is very, very important. And then I think this particular year, especially after coming out of COVID and realizing the value of human lives, I think everybody realizes that we need to work for a sustainable future and work for solar energy, electric vehicles, technologies which can actually sustain us. Otherwise, you see, billionaires and the richest people in Earth are already setting up colonies in Mars. It is crazy. It is insane. You get scared that why people are doing that. But I think to make Earth sustainable, these are the things which have to be done now. Otherwise, it will be too late. Right, Kaleji. Let's look at some of the challenges in the electric vehicles industry. One is, for example, the different standards. We see two-wheelers, three-wheelers, four-wheelers all pushing for different standards. And that, in the case of a new technology or a new industry, is often a big challenge. What is the government doing to try and push for standardization of norms? For example, on the issue of battery swapping or having your own batteries. And there are different views. Different companies have different business plans and naturally they have vested interests. How are you therefore trying to bring about standardization so that consumers are not having to suffer between the different business priorities of different establishments? The problem is that different companies and even startup and research organizations are continuously making a lot of research. So today we are not in position to standardize it. But I am giving you the example. Now company is giving you the electric charger. At your home, I have electric car in my home in Nagpur. I always use that. So in my home I charge my car. I don't have any problem. Even I go to Amravati or Akola, I can charge there. The charger is with me. So the standardized laws are already framed by the ministry and research is going on. And I am also telling you the interesting case. The total EV sold 1,21,623 units. Electric two-wheelers 57,000, 47%. Electric three-wheelers 59%, 48%. Electric cars 4,700, 4%. So this is rise in electric two-wheeler sales is 140% and electric cars 190% compared to pre-COVID period in 2019. So my only suggestion to you that market is vastly going up. And the people like all these things, they are giving new technology, new innovation, new research. And every time this is the industry where the particular Indian IITs institution, research institution, doing excellent research job. So we should not fix up anything. And we should allow the people to make the research and giving choice to the consumers that we can select it. There is no problem. And as far as the battery swapping is concerned, we are giving permission for that. No problem. We have already made the regulation for that, or there is no problem. Jitendra, one of the biggest concerns that consumers have is range anxiety. The fear that you leave from home, that there is something that you need to do, और गाड़ी रास्ते में बंद हो गई. The industry is trying to overcome that fear. Ranges are becoming more and more realistic. मैं आपको एक बात थोड़ा रोकता हूँ. एक कस्टमर का नाम बताओ जिसकी गाड़ी इलेक्ट्रिक के रास्ते में बंद पड़ी. क्यों ऐसे आपने? इसलिए उसको एंजाइटी कहते हैं. मैं आपको बताता हूँ, ये होने की संभावना नहीं है. ये विशफुल थिंकिंग है. गाड़ी अभी जो बड़ी गाड़ी है वो 400 किलोमीटर तक चार्ज हो रही है
और एक व्यक्ति जो हिंदुस्तान में एवरेज स्कूटर आपकी गाड़ी है समझे, आप दिन भर में दिल्ली में घूम के कितना घूमते होंगे? 100 किलोमीटर। अब एक बार 250 किलोमीटर गाड़ी चार्ज हुई और रात को अपने गैरेज में रखी चार्जिंग को लगाया, तो पहली बात ये बिल्कुल होने वाला नहीं है, ये विशफुल थिंकिंग है। आई एम एश्योरिंग यू कि कोई ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 300-400 किलोमीटर। एक बात जरूर है कि अब रिसर्च हो रहा है कि बैटरी में इलेक्ट्रिक स्टोरेज की कैपेसिटी कब ज्यादा बढ़ा है। जैसे LNG की अभी जो टेक्नोलॉजी आई है कि एक ट्रक 1600 किलोमीटर चलेगा तो भी उसको LNG भरने की जरूरत नहीं। वैसे अब इलेक्ट्रिक में ये रिसर्च होगा कि एक बार आपने गाड़ी चार्ज की तो 800 किलोमीटर नो प्रॉब्लम। तो अब 800 किलोमीटर चलता कौन है? 800 किलोमीटर यानी दिल्ली से आप मुंबई थोड़ी कोई जाने वाला इतनी गाड़ी थोड़ी चलाता है। तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। The concerns, what Gadkari ji is saying is probably true, that people don't really run out of juice when they're out on the roads, but range anxiety is one of the biggest factors in mass adoption of EVs. To what extent do you think the industry in India has been able to overcome those apprehensions? Well, if you see about the range anxiety, I think you use the right word, anxiety. Actually, it is not a requirement. If you see, it's a psychology of a customer in India, especially when you talk about the vehicle, whether it's two-wheeler or the four-wheeler, they always think that where I will fill the fuel, okay, in case of IC engine. But when we talk about the EV, we always talk about only two things. One is the infrastructure, like the charging station. Another is that if I go out from my home, whether I can come back or not. If you see in the two-wheeler, as Gadkari ji rightly said, in four-wheeler, you cannot go beyond 400 km a day. But if we talk about the two-wheeler, you never ever go more than 60, 70, 80 kilometers a day. Maybe there is very stray cases where you go up to 100 kilometers, 120 kilometers. For example, if we talk about, I'll just give one example, our scooter, Okinawa. Our highest range goes up to 140 kilometers in a single charge. And we have a fast charging. It means it will charge 45 minutes, 80% of the battery. It means 10 minutes you can go 20 kilometers if you charge. And those can be charged anywhere, any place, like you are charging your mobile phone. Like you just use at charging your mobile phone at your pawn shop, tea shop, maybe you can charge at your office, home. So it's just anxiety. It is not the real cause actually. It is only about the awareness, where the people are not aware about the awareness about the electric vehicle, their usage, how to use it, how to take this technology way forward. Because if you see, the technologies is emerging every day in this segment. If you see, now this vehicle become more electric than more electronic vehicle actually. So fast charging is already there. They will remove their anxiety about that. And the scooters, two-wheelers as well as the four-wheelers available with the long ranges is available in the market. It is only about the awareness, where the customer knows about it, which product, which company providing the right product for the right consumer. So I think anxiety is only anxiety. It's not the real thing actually. Gadkari ji, one of the challenges is the availability of charging infrastructure. And companies say it's a chicken and egg situation. Who sets up the charging infrastructure? If the companies have to spend money, then their economics per unit are not viable. They're expecting the government to set up charging infrastructure, and the government has made some effort, but it's very limited if they're actually thinking of mass adoption of electric vehicles. How do you see this issue of building charging infrastructure? Is it a public good? Is it something the government is committed to building? पहली बात तो ऐसे है कि हर व्हीकल के साथ चार्जर मिल रहा है। जैसे भी इन्होंने कहा कि स्कूटर मैक्सिमम 60 किलोमीटर चलती है और 140 किलोमीटर एक बार चार्ज किया 45 मिनट में हो जाती है, तो रात को चार्जिंग किया तो दूसरे दिन पूरे दिन चलेगा, नो प्रॉब्लम। कार का भी ऐसा है, व्हीकल कोई भी इलेक्ट्रिक का ऐसा है। पर अब NHAI की तरफ से मैं 350 रोड साइड एमिनिटीज पेट्रोल पंप बना रहा हूँ मुंबई दिल्ली हाईवे पे, यानी पूरे देश में ग्रीन हाईवे पर, और उसमें अब इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी बना रहे हैं। अगर हाईवे में अगर आप दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हैं, दिल्ली से आप अगर अभी हम जो हाईवे बना रहे हैं कि दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटे में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से मुंबई ये 12 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में। तो नेचुरली ये इतने रोड अच्छे बन रहे हैं। अभी मैं गाड़ी टेस्टिंग ड्राइव था, तो वो कानून के विरोध में आप बोलोगे आपने कानून बंद किया, तो मैं 170 किलोमीटर स्पीड से गाड़ी गई और मैं आराम से बैठा था। तो
धीरे धीरे उसी रोड पर रोड से मैं एक सवाल पूछूं सर आपसे, आपने सही बात है ट्रैफिक आपने जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सड़कें हैं, उसको बहुत इंप्रूव किया, लेकिन स्पीड लिमिट ज्यादा चेंज नहीं हुआ। अब इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, वहाँ पे सब जगह वो सीसीटीवी लगा हुआ है, डर लगता है कि थोड़े से तेज गए और फट से कटा चला, और आजकल तो घर पहुंच जाता है चलान। तो इसको थोड़ा इंडिया में स्पीड लिमिट बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा और मैं इसमें अभी तक कुछ कर नहीं पाया। दिस इज वन ऑफ द नेगेटिव पॉइंट। क्यों नहीं कर पाया? ये जो परसेप्शन वाली बात होती ना, रियलिटी वर्सेस परसेप्शन, तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है और ऐसे कुछ जजमेंट है हाईकोर्ट के कि इससे ज्यादा स्पीड नहीं चलेगी। अब प्रॉब्लम यह है कि एक्सीडेंट का कारण केवल स्पीड ऐसा नहीं, अभी एक्सिस कंट्रोल ग्रीन हाईवेज है, अब यहाँ कोई आता नहीं, कुत्ता भी नहीं आ सकता, पूरा बंद है, तो वहाँ स्पीड में कोई अड़चन नहीं। तो मैं अभी तक ये स्पीड की फाइल को घुमाता हूँ हर बार, ये हाईकोर्ट निर्णय देता है, वो सुप्रीम कोर्ट देता है। अभी मैंने ये स्टैंड लिया है कि पार्लियामेंट में जाना है तो बिल बनाकर जाऊंगा और ये स्पीड के सब पैरामीटर बदल देगा। स्लो स्पीड पे मूव करिए आपकी फाइल। सर इसमें मेरी दिक्कत ये है कि ये स्लो इसलिए मूव हो रहा है कि परसेप्शन जो है और कोर्ट के डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, वो इस मानसिकता में, जैसे आपने कहा ना कि ये अब बनो सिर्फ यार से सुपरस्टार एवरीडे विद वाइडेस्ट रेंज ऑफ स्टाइल्स एंड कलेक्शंस फ्रॉम मिंत्रा। पाओ सबसे यूनिक लुक्स फ्रॉम 100% ओरिजिनल ब्रांड्स सिर्फ मिंत्रा पे। आप सही कह रहे हो कि इलेक्ट्रिक की गाड़ी रास्ते में बंद होगी तो हम क्या करेंगे? ये जो होगा नहीं, होता नहीं, होने वाला नहीं है, पर दिमाग में बैठा हुआ है। वैसे स्पीड के बारे में पूरे लोगों के मन में बैठा कि स्पीड बढ़ाई तो एक्सीडेंट हो गया। अब मैं उससे बाहर निकालकर मैंने वो फाइल लगभग तैयार की है। एक्सप्रेस हाईवे की स्पीड क्या होगी, डिस्ट्रिक्ट रोड की क्या होगी? नहीं तो पूरा बताइए ना। एज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आपके हिसाब से हिंदुस्तान में गडकरी जी की जो नई बड़ी सड़कें हैं उस पर क्या स्पीड लिमिट होनी चाहिए? देखिए, ये डोंट टेक इट एज माय कमिटमेंट और डिक्लेरेशन, क्योंकि मैं मंत्री हूँ, इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय है। और मैं कोई अच्छी बात होगी तो कोर्ट में मैं मानता हूँ कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, जनता की अदालत है, कानून बनाने का हमारा अधिकार है, कानून को इंटरप्रेट करने का अधिकार हमारे जजेस को, उनका निर्णय हम स्वीकार करेंगे। तो अब मेरा जो व्यक्तिगत मत है, इट इज नॉट ऑफिशियल, बट मैं उस लाइन में सोच रहा हूँ कि ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे एक्सिस कंट्रोल ये मैक्सिमम 120 तक ले जाना चाहिए, 120 to 140, ये मेरा थिंकिंग है। जो नेशनल हाईवे है 4 लेन, वहाँ कम से कम 100 किलोमीटर तक जाना चाहिए। फिर जो 2 लेन पेव शोल्डर है उसमें 80 किलोमीटर तक जाना चाहिए। और शहरों में जो रोड है आपसे, इसमें से 75 किलोमीटर तक अलाउ करना। तो मैं एक सवाल पूछूं? हाँ। आपने कहा दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में पहुंच सकते हो, दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटे में पहुंच सकते हो। अगर आपने 120 भी कर दी ना तब भी नहीं पहुंचोगे। कैसे पहुंच सर? कैसे? आपको स्पीड लिमिट को, जैसे वहाँ अगर आप यूके देखो, यूएस देखो, वहाँ पे स्पीड लिमिट्स और प्रैक्टिकल है, खासतौर से तो 300 तक गए हैं। पर आप एक बात समझिए कि बीइंग ए मिनिस्टर आई डोंट हैव एनी हेजिटेशन कि आज अगर मैं टेक्निकली कर सकता हूँ 200 किलोमीटर की स्पीड पर आवर, वो इस पर मैं कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। 180 में इतने अच्छे हाईवे बनाया है, एक्सेस कंट्रोल है, पर पब्लिक को इस आइडिया को डाइजेस्ट करना इट विल टेक सम टाइम। तो हम फर्स्ट फेज में ये करेंगे, उसका 1 साल एक्सपीरियंस देखने के बाद। तो अभी आप 140 किलोमीटर पर आवर पे पुश कर। 120 क्योंकि देखो, मैं जब अपनी बात रखता हूँ तो एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्ट के जजमेंट, सबकी राय लेकर मुझे निर्णय करना पड़ेगा। मैं इस मत का हूँ कि बढ़ाना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैंने खुद ट्रायल भी की है। आप कभी दिल्ली मुंबई हाईवे पे जाकर 160, 160, 170 में जाओ, आपको कोई लगता है कि कोई कंफर्ट लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। पब्लिक इसमें एकदम इस बात को, आइडिया को मैंने 180 कर दिया तो आज तक पर ही न्यूज चली जाएगी, नितिन गडकरी ने 180 किया, लोगों में नाराज चालू है। So this is the problem. गडकरी जी, अभी हाल ही में मैं प्रयागराज गया था और हम लोग नेशनल हाईवे की सड़क पे थे और सड़क टूटी हुई थी, खड्डे थे उसमें और बारिश हुई। तो मैंने पूछा ये सड़क का क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सड़क हमने बनाई तो थी, नई सड़क थी, लेकिन अब काफ़ी हद तक बह गई, अब खराब हो गई है, बारिश का फिर से ठीक करेंगे। तो मुझे याद आया कि आप इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में ही आए थे जब आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने थे और आपने प्रॉमिस किया था कि आप कंक्रीट सड़कों की तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी सड़कों में सीमेंट होगा और आप पूरा एक्सप्लेन करके गए, जैसे आप आज
ईवीज के बारे में समझा रहे हैं कि देखो जब मैं सड़क ऐसी बना दूंगा, आप देखना ये इतने कॉन्ट्रैक्टर माफिया पैसे लेते हैं, सड़क फिर से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 5-6 साल वही सड़क दौड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। बड़े जैसे आप अभी जोश में बोल रहे हैं वैसे आपने बोला। तो उस टाइम पे मुझे स्ट्राइक किया कि मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि आपने प्रॉमिस किया था कि सड़कें आपकी खराब नहीं होंगी। अब जो आप सड़कें आप बना रहे हो, मतलब आप सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्पॉन्सर करिए, वो भी सड़कें बारिश में बह जाती है। देखिए अभी ऐसा है कि हमारे 60 to 70% सड़कें पूरी कंक्रीट की बन रही, और ये भी सच है कि मैं आपके कार्यक्रम में मैंने कहा था कि 100% हम कंक्रीट की सड़कें बनाएंगे, और मैं देश के सीमेंट इंडस्ट्री का 40% सीमेंट कंज्यूम करता हूँ। और आपके यहाँ मैंने जो कहा उसका कोई लोग गलत फायदा लेंगे ऐसा मुझे कभी ध्यान में नहीं आया। मैं जब सीमेंट को लेने लगा और सीमेंट की सब सड़कें बनाने लगा, तो सीमेंट वालों ने कार्टेल करके 180 रुपए की बैग 380 रुपए में लेके गए। और जब मुझे इस बात का दुख हुआ कि भाई देश की सीमेंट इंडस्ट्री को मैंने इतना बड़ा ऑक्सीजन दिया है, पूरा 40% सीमेंट मैं खरीद रहा हूँ, और अब ये इस प्रकार से कार्टेल करके रेट बढ़ा रहे, वो मेरे मन में उसकी चीड़ आई, और फिर मैंने उसका सीमेंट मैंडेटरी करने का निकाल दिया। उसमें क्या हुआ कि कुछ सड़कें अब बिटुमेन में बन रही, कुछ सड़कें सीमेंट में बन रही। इसका कारण ये सीमेंट इंडस्ट्री है। अब मैं स्टील और सीमेंट का यूज कम करने का स्ट्रेटेजी खुले रूप में बोल रहा हूँ। अभी जैसे ये ब्रिज बनता है तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पियर 30 मीटर होता है हिंदुस्तान में। तो मलेशिया और सिंगापुर और अमेरिकन कोड में ऐसा है कि जो बीच वाला बीम है ना, ये इसको स्टील फाइबर में कास्ट करना। तो स्टील फाइबर में कास्ट किया तो ये 30 मीटर का डिस्टेंस में 120 मीटर बढ़ा दूंगा, तो 3 पियर कम हो गए तो स्टील कम लगेगा। और मैं ये हर जगह स्टील कैसे कम यूज हो, सीमेंट कैसे कम यूज हो, ये मैं खुले रूप से कर रहा हूँ। क्योंकि मैं जब ये कर रहा हूँ, ये कार्टेल करके भाव बढ़ाने की जो वृत्ति है, इसके कारण थोड़ा सा मैं उसमें पीछे हट गया। इसलिए अब और एक नियम बना रहा हूँ कि बरसात की सरासरी रेंज की जो जिस एरिया में ज्यादा है सरासरी से, वहाँ अब कंक्रीट रोड ही बनेंगे। और दूसरी बात, आपका जन्म नासिक में हुआ है, तो नासिक से पेट करके, अभी मैं 3 दिन पहले नासिक में था, तो वहाँ हमने बिटुमेन रोड पर 8 इंची का व्हाइट टॉपिंग यानी सीमेंट करके किया है, तो वो भी सक्सेसफुल हुआ है। और धीरे धीरे ऐसे खराब हुए बिटुमेन रोड को हम लोग 8 या 6 इंच का सीमेंट कॉन्क्रीटिंग करेंगे। दूसरा एक अच्छा है कि बिटुमेन रोड बनाकर एक मुझे अभी प्रेजेंटेशन मिला कि जैसे सीमेंट का पतला तैयार करके वो बिटुमेन रोड के अंदर डाल देना, तो उसके कारण वो अंदर जाता है और उसको बिटुमेन को और अच्छा पकड़ लेता है। तो वो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पर ये जो बात थी, ये थोड़ा मैं ढीला पड़ा। इसका कारण अगर ये रेट नहीं बढ़ाते तो मैं इनके प्रोडक्शन को पूरा खरीद लेता। मैंने रेट कॉन्ट्रैक्ट भी किया था।